Hello everyone, welcome back to Study with Mansi. In this video, we'll discuss the Mughal chronology and the decline of Mughals. So let's start without wasting our time. When we speak of Mughal chronology, major नाम सबको पता है जो शुरू के 5-6 हैं, उसके बाद लोग mostly confused होते हैं. We'll go through all of them once. We start with Babur 1526 to 30. We all know about him, and he was originally from the Afghanistan side, the Kabul Kandahar side, Kabul Kandahar belt. वहाँ से he lost his empire and he came to India in search of a land जहाँ वो survive कर सके, and he stayed here, but his heart was always in Kabul and Kandahar. We'll discuss him in detail in medieval, but for now let's stick to this. 4 years and he dies out of illness. Then comes his son Humayun. He ruled from 1530 to 40. Then Shah Suri takes over 40 to 45, 55 actually. This has to be 55 not 45. And मतलब इनका जो रेन था बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था. He was mostly roaming around here and there and in search of support, in search of empire, but nothing was happening. It's eventually by 1555, 56 that he finally settles and has a land with him. But he dies. He falls from stairs and dies. Let's come to the main person here, Akbar. उनका टाइम पीरियड इफ़ यू सी लंबा है 1556 to 1605. He had the opportunity to have a stable empire. He started very young at the age of like 13-14 with Bairam Khan as his guardian, who was a very very a very able guide for him and a very able military man. Then comes Jahangir 1605 to 27, his son. Okay, and this is the time when the royal firmans were first time issued to East India companies. Okay, यहाँ पे East India company का if you see arrival हो चुका है. Okay, and arrival कुछ यहीं पे हो चुका है end में, but dominantly यहाँ पे आएगा. Then comes Shahjahan 1628 to 58. Okay, I'll tell you something how to remember these. One of our teachers taught us this. When you say Babur, you just say Babur 2630. When you keep talking like that 2630, it's like you automatically remember the years, and 15 you obviously remember naturally. So when you speak of Jahangir 0527, so it's 1605 to 27 this way. I hope it helps. Shah Jahan 1628 to 58, mostly busy in building monuments, and the monuments you see in Delhi and in Agra and in many other places, major credit to him. And empire work is also there, but he is more into literature, painting Jahangir se bhi associated. We'll discuss all that. And Shah Jahan is mostly into art, architecture and everything. Then comes Aurangzeb 1658 to 1707, major ruler again. Why? Because decline यहीं से आप शुरू करते हैं. Major expansion में लगे हुए हैं. पैसे की कमी है. पैसे की कमी as in बहुत expand कर रहे हैं. Constant warfare and everything is happening. Deccan में enter कर रहे हैं. Royal Farman 3, number 3 is issued during his phase. We'll discuss all that in medieval in detail. But Aurangzeb is an important person here because downfall शुरू यहीं से है. Now these are the later Mughals जिन्हें बोला जाता है, but these are important in their own way. कभी कभी facts में पूछ लिया जाता है, and you should name them, know their names. And in many exams questions are asked उनकी chronology को लेके, उनको order में लगाने को ही दे दिया जाए तो भी बच्चे फंस जाते हैं. We'll cover them very quickly. Bahadur Shah 1707 to 1712. He was 63-year-old when he came on the throne. His real name was Muazzam. उनको एक टाइटल दिया था शाह ए बेखबर. बेखबर इस जिसको किसी चीज़ की खबर नहीं हो, कुछ परवाह ना हो. सो द नेम स्पीक्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रूलर ही वॉज. पैसिफाइंग पॉलिसी थी. शाहू जो थे, जो मराठा किंग थे, उनको औरंगज़ेब ने कैप्चर कर रखा था. इन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया था. राजपूत से अच्छे बॉन्ड बना रहे थे, शांति से काटना चाहते थे अपना टाइम. 5 साल थे मुश्किल से. Jahandar Shah, hardly 1 year. He was the one who abolished jizya and brought in Ijara system. We'll talk about it. And then came Farrukhsiyar 1713 to 19. फरमान नंबर 4 टू ब्रिटिश, द रॉयल फरमान इन्होंने दिया था. इनके किंग मेकर्स थे सैयद ब्रदर्स. अगेन मेडिवल, बट सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ही बिकेम द किंग. जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स इन्होंने भी बंद कर रखा था, एंड इनको फाइनली मार दिया गया था बिकॉज इनकी बन नहीं रही थी सैयद ब्रदर्स से. सो किंग में जब आप किसी और के भरोसे राजा बनते हो तो आपकी गद्दी बहुत दिन नहीं टिकती है. तो ही वॉज किल्ड, एंड इवेंचुअली मोहम्मद शाह केम ऑन द थ्रोन 1719 to 48. नाउ दिस इज
comparatively longer period. Okay, 1719 to 48, and he was given the title Rangila. People used to call him Muhammad Shah Rangila. Rangila against नाम काफ़ी है कि बहुत रंगीले मिजाज के थे. एंड इन्होंने सैयद ब्रदर्स को मार दिया. फिर 1724 में इन्हीं के टाइम पीरियड में चिन कुलिच खान ने हैदराबाद एज अ सेपरेट सक्सेसर स्टेट इस्टेब्लिश किया था. विल टॉक अबाउट इट. 1739 ड्यूरिंग हिज पीरियड नादिर शाह केम एंड इन्वेडेड. ओके, अहमद शाह बहादुर फिर रूलर बने 1748 टू 54. मोस्टली उधम भाई हैंडल करते थे विद द हेल्प ऑफ जावेद खान. ये उतना मेजर डिटेल नहीं है, यू विल स्टडी मोर ऑफ दिस इन मिडिवल. देन केम आलमगीर टू 1754 टू 59. नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूलर. वाई? बिकॉज इनके टाइम पीरियड में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. समटाइम्स रूलर डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है. एंड आलमगीर टू वॉज द ग्रैंड सन ऑफ जहांगीर शाह जो शुरू में आए थे. आई वॉज सेइंग समटाइम्स रूलर डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट क्या होता है, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड or you must know this when you study history. You must relate topics. आप मुग़ल क्रोनोलॉजी सेपरेटली नहीं पढ़ सकते और इवेंट्स सेपरेटली नहीं पढ़ सकते. आपको लिंक करना आना चाहिए. जितना आप लिंक करेंगे आपको समझने में उतनी आसानी होगी. बैटल ऑफ प्लासी जैसा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, बंगाल में लड़ाई हो रही है, पूरा नॉर्थ हिला हुआ है इससे. यू नीड टू नो हु वॉज द रूलर एट दैट टाइम इन दिल्ली. सो आलमगीर टू वॉज द रूलर. ओके, उनके टाइम पे हुआ था ये. देन केम शाह आलम टू 1760 to 1806. Now this is again a long time, 40-45 years का है. इनके टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर होगा 1764 में. इनके टाइम पे 1761 में पानीपत की लड़ाई भी होगी. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास वर्सेस अब्दाली, इनके टाइम पे होगी. एंड 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है. ठीक है. एंड नाउ द मुगल रूलर्स बिकेम पेंशनर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली. उसके बाद एक रूलर आएंगे अकबर टू 1806 टू 37. इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था. 1835 में मुगल कॉइन्स जो थे वो मुगल रूलर के नाम पे मिंट होने बंद हो चुके थे. मेजर साइन की ख़त्म ही हो अब तो. एंड लास्ट वी एवरी वन नोज बहादुर शाह जफ़र 1837 टू 57. नाम के ही रूलर थे. एंड जब रिवोल्ट हुआ तो लोगों ने इनको एज एम्परर वापस उठाया कि आप लीड करो. ही वॉज ट्रायल हुआ था पूरा एंड ही वॉज एक्साइल्ड टू रंगून. ही डाइड देयर इन 1862. एंड नवंबर 1, 1858 ऑफिशियली मुगल रूल केम टू एन एंड. एंड बहुत पहले आ चुका था बट एक ऑफिशियल एंडिंग वॉज 1858. ठीक है. एंड बीच में यहाँ पे फर्रुखसियार के बाद एक्चुअली ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम एडिंग. 1713 टू 19 हम देखते हैं फर्रुखसियार हैं, और मोहम्मद शाह हम देखते हैं 1719 में ही आ चुके हैं. बट बीच में दो रूलर्स हैं जो कुछ महीने के लिए. यहाँ पे प्रॉब्लम वही हो रहा है, किंग मेकर्स इन्वॉल्व हैं, लोग एक दूसरे को मार के गद्दी ले रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को मारा जा रहा है. रफ़ी उद दजारत Feb to June 1719 and Rafi ud Daula June to September 1919, and he took the title of Shah Jahan too. This is just for regular information. Okay, so once we are done with Mughal chronology, we'll quickly head to first battle of Panipat. हमारा हुआ था 28 April 1526, Babur versus Ibrahim Lodi. He was the last Lodi ruler, and use of gunpowder and artillery were done. Babur won despite having a small army because smart army and tactical moves there comparatively. This is to give you a quick background. History में you cannot move ahead without understanding the background. I cannot directly tell you the decline of Mughals without telling you what was happening by the end of Mughals. So this is just to give you a quick background in a minute. Okay, second battle of Panipat 1556. ये ऐसे याद रख लो, 30 साल बाद हुआ है. ठीक है. 1556 अकबर वर्सेस हेमू. कॉन्टेक्स्ट क्या था? बाबर आए, हुमायूं आए, शेरशाह सूरी आए. वी डिस्कस्ड इट रिसेंटली. फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य, ही वॉज एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एंड मिलिट्री जनरल ऑफ सूरी, शेरशाह सूरी. ओके, इन्होंने वापस थ्रोन ले लिया था. 1556 में फाइनली अकबर वर्सेस हेमू हुआ. अकबर वॉज 14 years old. बैरम खान वॉज द गार्जियन. मुगल रूल री इस्टेब्लिश हो गया था फाइनली. ठीक है. यहाँ से अकबर का रूल हमने देखा कंटिन्यू होगा 1556 to 1605. ठीक है. नेक्स्ट वी मूव ऑन. पानीपत की इंपॉर्टेंस ये एक बार हिस्ट्री में यूपीएससी के मेंस में पूछा गया था, सो आई एम जस्ट एडिंग इट हियर कि कभी ये क्वेश्चन सोचा इतनी लड़ाइयाँ पानीपत में क्यों होती हैं. आई एम जस्ट एडिंग इट फॉर फन हियर एंड जनरल नॉलेज. ये मान लो आपका अफ़गानिस्तान है, ये खैबर पास आता है, इस तरफ आपका पंजाब और आगे जाके कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, थानेसर, इधर आपका दिल्ली आता है. इफ़ यू रफली अंडरस्टैंड दिस मैप, ये प्लेन्स के एरिया हैं. ठीक है. एंड पानीपत और ये जो पंजाब के आसपास के एरियाज़ हैं, हरियाणा पंजाब के, दीज आर गेटवे टू दिल्ली फ्रॉम द वेस्ट. और हमेशा ये सब वेस्ट से ही चालू होता है. इवन इन द प्रेजेंट कंडीशंस यू कैन सी इट ऑल बिगिंस फ्रॉम द वेस्ट. जो हम लोग का वेस्ट है उधर से. नॉर्थ वेस्ट में हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड रहा है.
सो ये जो है ये बेस्ट प्लेस होती थी टू स्टॉप दी एनिमीज़, बिकॉज ये प्लेन से इनमें लड़ाई करना कंपेरेटिवली आसान होता है. एंड इफ़ यू सी गजनी के टाइम पे, गोरी के टाइम पे हमेशा यहीं पे के आसपास लड़ाई होती थी. इट वॉज अ कन्फ्रंटेबल स्ट्रेटेजिक ग्राउंड. कन्फ्रंटेशन आसान था, हमारे पास घोड़े हैं, लोग पैदल चलने वाले हैं, मूवमेंट आसान है. ठीक है. प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, ईजी टू मेंटेन सप्लाई, क्योंकि दिल्ली से पास है तो खाने पीने की सप्लाई, आर्मी की सप्लाई, वेपन्स की सप्लाई मेंटेन करना इधर वालों के लिए जो इंडिया में थे आसान होता था. फ्लैट ग्राउंड था, कैवलरी का मूवमेंट आसान होता था. इस एरिया में मानसून छोटा होता था, अनलाइक सम एरियाज़ इन इंडिया जहाँ पे मतलब बहुत लंबे और भारी मानसून्स होते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं था, शॉर्ट मानसून होता था तो 1-2 महीने का है, तो आपको लड़ना कंपेरेटिवली आसान होता था. एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड स्मिथ्स वॉरफेयर प्रिपरेशन में हेल्प होती थी. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. अगेन इन शॉर्ट, मनसबदारी सिस्टम. हम सब मनसबदारी क्राइसिस पढ़ लेते हैं, मनसबदारी सिस्टम है क्या ये कोई नहीं बताता. स्क्रीन पे ज़्यादा डिटेल है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी. मनसबदारी सिस्टम बेसिकली मुगल्स के अंदर क्या था कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी चलती थी. डुअल फंक्शन होता था, एक बंदा होता था बेसिकली मनसबदार. ठीक है. उसके ऊपर 2 जिम्मेदारी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की और आर्मी की. मनसब क्या था, एक ऑफिस थी, एक पोस्ट थी, समझ लो एक टाइटल था. और मनसबदार वो होता था जिसको ये मनसब दिया जाता था, द होल्डर ऑफ मनसब. किंग चूज़ करता था उसको, या तो अपॉइंट करता था, ट्रांसफ़र भी किंग करता था, और जो भी उनको हटाता था वो भी किंग करता था. ठीक है. किस क्राइटेरिया पे दिया जाता था, या तो आपकी लीनिएज होगी, आप किसी नोबल फैमिली से हो, या अनलेस यू हैव डन समथिंग टू अर्न इट रियली वेल. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म, पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप. मतलब मालिक और पेट्रन क्लाइंट, यू अंडरस्टैंड, एक मालिक और एक उसके वफादार की जैसा रिश्ता था. काइंड ऑफ फ्यूडल हल्का सा था. फ्यूडलिज्म को लेकर डिबेट है यहाँ पे, बट लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल वे. इट इज़ अ फीचर ऑफ फ्यूडलिज्म, इसलिए गिव एंड टेक चल रहा है. राजा जो है, एम्परर जो है, वो देगा एक पीस ऑफ लैंड एज मनसब टू दी मनसबदार. ओके. मनसबदार बदले में राजा को क्या देता था, आर्मी देता था जब उसको ज़रूरत होती थी, और लॉयल्टी, बेसिकली लॉयल्टी एज एन उसके तरफ वफादार रहता था. उसके वहाँ पे उस अपने एरिया की पूरी मेंटेनेंस वो हैंडल करता था. यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो भिजवाना, एक शेयर खुद रख लेगा, एक शेयर भेज देगा, और जब जब राजा को ज़रूरत होगी तो आर्मी वही भेजेगा. बेसिक मनसबदारी सिस्टम यही था कि पूरे कंट्री को खुद ना मैनेज करके आपने मनसब्स में बांट दिया है. एक मनसब, एक एरिया है, जैसे मान लो लखनऊ एक है, एक बंदे को दे दिया. अब उस एरिया को मैनेज वो करेगा, वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो आगे सप्लाई ऊपर राजा तक वहीं पहुँचाएगा, एंड अपने एरिया में एक आर्मी वही मेंटेन करेगा, और जब जब राजा को ज़रूरत होगी तो आर्मी वो सप्लाई करेगा. ठीक है. ये तो बेसिक मनसबदारी की अंडरस्टैंडिंग हो गई. इसमें एक पॉइंट याद रखना, दैट द लॉयल्टी वॉज टू एम्परर पर्सनली एंड नॉट टू द क्राउन. इसका एक फीचर था कि क्राउन को लेकर लॉयल्टी नहीं थी, लॉयल्टी सिर्फ राजा को लेकर थी. राजा बदला, लॉयल्टी बदल जाती थी, इसीलिए आगे बहुत अनस्टेबिलिटी भी दिखती है. ठीक है. मनसबदारी सिस्टम में कुछ फीचर्स हैं, आई थॉट आई कवर देम हियर. ओके. एंड मे बी विल डिस्कस द डिक्लाइन इन ग्रेटर डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. सो मनसबदारी सिस्टम में सैलरी कैसे डिसाइड होती थी, या तो नकदी होती थी या तनख्वाह होती थी. नकदी आपको कैश सैलरी देगा राजा, तनख्वाह होता था आपको जागीर मनसब जो भी कह लो, वो एज अ लैंड दिया जाता था, और जो भी उससे रेवेन्यू आता था वो आपका हो जाता था एज अ मनसबदार. रैंक, 2 तरह की रैंक होती थी, ज़ात और सवार. ज़ात आपकी पर्सनल रैंक होती थी, ये आपकी पर्सनल सैलरी डिटरमाइन करती थी. सवार वॉज कितने हॉर्समैन आप मेंटेन करोगे, नंबर ऑफ हॉर्समैन टू बी मेंटेन बाय यू. ठीक है. और लैंड कितने तरह के होते थे इन जनरल मुगल पीरियड में, जागीर और खलीसा. जागीर वो लैंड थी जो मनसबदार को दी जाती थी, चाहे सैलरी, जिससे वो अपनी सैलरी निकालता था और आर्मी मेंटेन करता था. खलीसा राजा का पर्सनल लैंड होता था, रॉयल लैंड, जो नियरली 1/5 होता था. एंड इससे जो पैसा आता था उससे राजघराना मेंटेन होता था, रॉयल हाउस होल्ड चलता था. एंड जो नकदी हमने यहाँ पढ़ा ना, ये नकदी वाले, इनकी सैलरी अगर हम कैश में दे रहे हैं तो कहाँ से देंगे, इनकी सैलरी कैश में जो खलीसा लैंड से रेवेन्यू आता था वहाँ से देते थे. जागीर कितनी तरह की होती थी, बेसिकली लैंड जो है, ये लैंड हमने पढ़ा, जागीर और खलीसा. अब जागीर 2 तरह की होती थी, तनख्वाह और वतन. तनख्वाह इज़ ट्रांसफरेबल, वतन इज़ परमानेंट, जो हेरिडिटरी होती थी, और जिनको ये दिया जाता था ये 10% उसमें से पेशकश की तरह एनुअली राजा को देते थे. एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल आप राजपूत को ले सकते हैं, जब वो मुगल्स के अंडर आ गए थे तब. आगे बढ़ते हैं.
इजारदारी सिस्टम अगेन एक शॉर्ट सिस्टम चला था, शाहजहाँ के टाइम से चला था ये, एंड औरंगज़ेब के टाइम भी था, बाद में 18th सेंचुरी में और ज़्यादा फैल गया था, जहांगीर शाह के टाइम पे बंगाल पंजाब भी चला गया था, एंड फारूकसियार के टाइम पे तो खलीसा लैंड्स पे भी स्टार्ट हो चुका था। अब बात यह है कि ये था क्या, एंड दिस आई एम एडिंग ओनली एंड ओनली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको आगे डिक्लाइन बहुत क्लियरली समझ में आए। ओके, एक लाइन में अगर समझें तो वो सिर्फ ये है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ एन एरिया वॉज ऑक्शन। पहले होता था कि आपको मनसब दे दिया, आप वहाँ से कलेक्ट करो, किसी को असाइन कर दिया। अब होता था ये नीलामी टाइप का होता था कि ये एक एरिया है लखनऊ का, अवध का, कौन इंटरेस्टेड है, आप नीलामी लगाओ, उस गद्दी को आप खरीदोगे अब, ठीक है। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वाज ऑक्शन। तो जो भी जीतता था इजारदार उसको बोलते थे, जो भी बंदा, एंड वो रेवेन्यू ना एडवांस में दे देता था। जैसे अवध के एरिया से मान लो मुझे 1 करोड़ रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है, तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को अपॉइंट किया, वो पूरे साल देखभाल करेगा, फिर जो रेवेन्यू आएगा उसमें से मुझे कुछ देगा, जितना बन रहा है उतना, ऐसा नहीं है। मैं ऑक्शन कर रही हूँ कि किसको अवध चाहिए, तो लोग बोली लगा रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं, एंड जो पैसा आ रहा है, मान लो 70 लाख, 1 करोड़ कुछ पहुँच गया, वो पैसा मुझे एडवांस में मिलता है, तो मेरी जेब में एज एन एम्परर पैसा पहले ही आ रहा है, तो इट्स अ गुड डील फॉर मी टेक्निकली। बट प्रॉब्लम क्या होती थी इस सिस्टम में, अब एक बार जिसको वो मिल गया पैसा देके, अब वो वहाँ से अपना पूरा 1 करोड़ वसूलना चाहता है जो वो राजा को दे चुका है, और एक क्यों, अब वो 2 करोड़ कमाना चाहता है, राइट। तो एक्सप्लॉयटेशन इवेंचुअली क्या होता था, पेजेंट्स का होता था। तो इजारदार हु वन पेड रेवेन्यू इन एडवांस एंड कलेक्टेड इट लेटर फ्रॉम द एरिया। यूजुअली ये पैसे वाले होते थे, भाई इतना पैसा लाएगा कौन, मोस्टली ये ट्रेडर्स होते थे। एंड अब इसमें एक चेंज क्या आया, इन ट्रेडर्स का, मर्चेंट्स का रूरल इकॉनमी, खेती बाड़ी से कोई रिश्ता नहीं होता था, तो ये कभी पेजेंट्स के को ना समझ पाते थे, ना उनके दुख दर्द को समझ पाते थे। ये सिर्फ पैसे से मतलब रखते थे कि मेरा पैसा वापस आना चाहिए, इनका कोई कनेक्शन नहीं था पेजेंट से। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, ओवर एक्सट्रैक्शन, ऑपरेशन बढ़ गया ग्रेजुअली, जिसकी वजह से पेजेंट रिवोल्ट्स भी बढ़ गए। एंड दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वॉरेन हेस्टिंग्स जो हम आगे पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, इन्होंने सेम सिस्टम को एज फार्मिंग सिस्टम री इंट्रोड्यूस किया था इन 1772-73। लैंड रेवेन्यू सिस्टम सिर्फ क्लैरिटी के लिए एक लाइन में अगर हम देखें तो कैसे चलता था, सबसे नीचे होते थे पेजेंट्स 2 तरीके के होते थे, पहिकश्त, खुदकश्त, या तो लैंडलेस होते थे या उनके पास अपनी लैंड होती थी, ठीक है। लैंडलेस वाले सोचोगे काम कहाँ करेंगे, खलीसा लैंड पे काम करेंगे, ठीक है। ऐसे करके इनके ऊपर होता था प्राइमरी ज़मींदार का काम क्या होता था, उसके पास पुलिस पावर्स होती थी, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उस पर जो कमीशन बनता था वो अपने पास रख लेता था, ठीक है। ये जो थे ट्रेडिशनल लीडर्स थे सोसाइटी में, पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल के, ठीक है। मिल्कियत हम किसे बोलते थे, जो उस ज़मींदार की अपनी पर्सनल ज़मीन थी, जैसे उसको ये पूरा गांव अलॉट हुआ है कि यहाँ के ज़मींदार तुम हो, पर कुछ ज़मीन उसकी अपनी पर्सनल होगी ना, जो उसकी अपनी बिल्कुल अकेले की है, उसे हम मिल्कियत बोलते हैं। बाकी इस एरिया पे लोग खेती वेती करते हैं, वो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके आगे पहुँचाता है, ठीक है, और कुछ पार्ट एज कमीशन रख लेता है। तो मिल्कियत वॉज इज पर्सनल लैंड, जिसपे वो खुद भी लैंड रेवेन्यू देता था, और अगर उसकी लैंड रेवेन्यू, उसकी जो लैंड थी वो रेवेन्यू फ्री कर दी जाए तो उसे ननकार लैंड कहते थे, बेसिकली जो हमने अभी देखा। अगर इस पे वो रेवेन्यू देता है तो ये मिल्कियत है, अगर इस पे वो रेवेन्यू नहीं देता है तो इसे ननकार लैंड बोलते हैं। खैर, इनके आगे इंटरमीडिएट ज़मींदार होते थे, ये इनसे बड़े ज़मींदार समझ लो, जैसे ये एक को गांव लौट हुआ है पर ये इसके अंदर 4-5 गांव आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। इंटरमीडिएट के ऊपर या तो जागीरदार होता था जिसको ये पूरी जागीर अलॉट हुई है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, आई विल शो यू इन अ सिंपल वे। दिस इज़ अ पेजेंट, ये एक गांव है मान लो एक ज़मींदार के अंडर, ये मान लो एक बड़ा ज़मींदार है, इंटरमीडिएट ज़मींदार, जिसके अंडर ऐसे कई सारे गांव हैं। ये एक जागीरदार है, ठीक है, जिसके अंडर ये पूरी जागीर है, ओके। अब जागीरदार को ये सारा रेवेन्यू पहुंचता था और वो अपने पास रखता था, उससे आर्मी मेंटेन करता था, सब करता था, और वो आगे जाके रेवेन्यू भेजता था। या फिर वो पैसा जाता था दीवान को, अगर खलीसा लैंड है, एम्परर की लैंड है, तो पैसा डायरेक्ट दीवान को जाता है, ठीक है। एंड दीवान जो होता है स्टेट लेवल पे काइंड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर होता है, सूबा लेवल पे, और वो आगे मीर बख्शी को दिल्ली में भेज देता है रेवेन्यू। और अगर जागीरदार के पास होता है, जागीरदार अपने पास उसमें आर्मी मेंटेन करता है, सैलरी अपनी निकालता है, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। नाउ वी फाइनली हेड टू डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड वील डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।